he is meeting them, and yes, he is telling spread meditation, do meditation. So जो पत्री जी बोलते हैं ना हर हमेशा, वेजिटेरियनिज्म स्प्रेड करो, do meditation, teach meditation. So, ओके, वेजिटेरियनिज्म स्प्रेड करने में किसी को कोई मुश्किल होती है क्या? गुजरात में तो बहुत इजी होगा, सब लोग तो वेजिटेरियन ही हैं, है ना? आप लोग कितने लकी हो। उस मामले में तो मतलब यू आर वेरी, आई थिंक ओवरऑल गुजरात इज वेरी प्रोग्रेसिव ऑन ऑल एस्पेक्ट्स. IIM Best is in Ahmedabad, NID is in Ahmedabad, and no, it's already vegetarian state, and ISRO. No alcohol also. ISRO is also in Ahmedabad, and awesome, the founder of ISRO is also from Ahmedabad, Vikram Sarabhai. You guys are ahead, very ahead of the everybody. Actually, I have studied in the school of CN Vidyalaya, which is founded by Vikram Sarabhai and their family. Gandhi ji is from Gujarat. Ahimsa is from Gujarat. ओके, यहाँ पे मेडिटेशन स्प्रेड करना मुश्किल है क्योंकि रिलीजियस है क्या लोग बहुत? क्योंकि वो तो मुश्किल नहीं होगा, वेजिटेरियनिज्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ थोड़ा रिलीजन का हो सकता है कि थोड़ा कट्टर हो सकते हैं रिलीजियस रिलीजन को छोड़ने के लिए, या टू स्टेप अबव इट. ओके, ठीक है. एवरीवेयर वी हैव डिफरेंट थिंग्स. ओके, फाइन. आज हम कुछ एक्सरसाइज करें क्या? We'll just do an exercise. आप लोग पेन और पेपर ले सकते हैं. We'll just do one exercise. और some painting. अगर आप लोगों को पसंद है, if you have a sketchbook, a book and some crayons or pencil colors or something. आपके बच्चों का होगा अगर है तो. Okay, tell me who is with pen और paper तो सबके पास ही है ना? You can just grab it. I give you 5 minutes. Please go and get a pen and a paper. और जब सब लोग रेडी है मुझे चैट में कंफर्म कीजिए. Just go get a pen and paper. मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाली हूँ, बट यार लेट्स सी. All is ready. Just raise your hand. जो ready है अपना hand raise कर दे या yes बोल दे.
Waiting for others. 2 people are ready. Yes, yes, we are ready. Already? Jagdish ji, Geeta ji, Prashant ji. हाँ जी, मैं रेडी हूँ. Okay. I don't know what I'm going to do. Let's see. Okay. So, write a question. Who am I? And what is my purpose? Second question. Okay. 2 कॉलम बना दीजिए, इन दोनों को अलग अलग आंसर करेंगे. Who am I को अलग आंसर करिए और what is my purpose को अलग आंसर करिए. And अभी 6:58 हुआ है. 7:10 तक 10 minutes तक we'll just keep writing. जो भी आएगा मन में, just please keep writing. Okay. ये दोनों क्वेश्चंस पे. हाँ, पहले एक को आंसर कर दीजिए, Who am I वाले को. जो आपको मन में आता है सब लिख दीजिए. और फिर सेकंड वाले को What is my purpose. If you need more time, we'll take more time. Okay. Yeah, we can start.
Let's say 5 more minutes. दीक्षा जी मैं आपको इस पे भेज दूं व्हाट्सएप पे? नहीं, it's not for me, it's for you. आपका हो गया? हाँ फर्स्ट तो लिख दिया मैंने, सेकंड हाँ लिखिए, उसको लिखिए। जब तक सेकंड में एक बार आपको सेटिस्फाइड नहीं हो तब तक प्लीज कंटिन्यू। हाँ नहीं सेकंड क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज माय पर्पस? See, purpose will vary, na? Purpose now will be different. Purpose earlier during your childhood may be different. The purpose now, current purpose, na? Now, current, na? Okay. You'll feel it when it is right, when the answer is right. You'll feel different inside you. तो एक एक लिखते जाइए और उसको just check it within. अपने आप से कनेक्ट करके उसको चेक करते जाइए। Who I am जो है, I am not body, I am energy, I am not what I ought to be. So I want to tell world who I am. This is my who I am के बारे में। See, yeah. I am energy. So I am energy. I am not what I want to be. Yeah. I am body. Actually, body होना चाहिए। I'm not the body. I'm the soul. I am not body. I am soul. लेकिन हमारा अगर एक्सपीरियंस में आप क्या व्हाट डू यू एक्सपीरियंस मोर? बॉडी को ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं हम, है ना? Yeah. On a day-to-day basis. So it is also a part of us. Huh? It's not only what we are, but it is also a part of us, right? It is also, we are more than that. Definitely. लेकिन हमारा current reality is that we are a body also. But we forget and then we don't, I mean, ऐसा हो जाता है ना, जो हम body को neglect करने से we get all types of problems. You say any disease. हाँ, exactly. Neglect तो नहीं करना है, सिर्फ हमको just we, see, body is very important. Yeah.
Without this, this is our. I think so everybody should love their body. I don't know whether normally I say in the morning affirmation, I love my body, and then I start my routine. Yeah, I love all the parts, cells of the body. So we have to love. We have to show love. Then only that will respond Yeah. to us. Yeah. So we are different layers. जैसे कि एक अनियन का होगा ना लेयर, तो बॉडी इज आउटर लेयर, फिर और भी लेयर्स हमको समझ में आएगा कि हम क्या है. Yeah. आपके एक्सपीरियंस में क्या क्या है? बॉडी, yes, you are body also. You are a soul also. I'm energy also. I am energy. You are Also. energy also. So all that you are, just write. जब तक कि आपको satisfaction नहीं हो, जब तक ऐसा आंसर नहीं आए जो आपको satisfy करे, and it should be out of your experience, okay? कि आपने क्या experience किया है. So take another. If anybody needs more time, नहीं हो गया है. okay, are you guys satisfied with your answers? Okay. Yeah, done. Okay, so yeah. So let's hear it from everybody. Yeah, संतोष सर आप कंप्लीट कर दीजिए आपका. Then we'll go to. मैं बोला ना, I started. I am a body. I am an energy. I am not what I ought to be. I am what I am. I want to tell the world who I am. These are what it came in my mind. I have written. And the purpose of life may, when I was a child, my ambition was to become an engineer. I was an average student. With my prayers, I got it. I got the job, worked there, got married. Current. Now, the purpose of my life now is to teach meditation, spread meditation. Whatever I feel, I must do it. Keep family happy, soul happy. Do good to others. If you want to live happy life, set goal which can be achievable. Lead quality life. These are my purpose of life के बारे में लिखा हूँ. So what I have understood and what I came in my mind, I have written. Good. Yeah, that is what is important. What is coming from inside of you. Yeah, that is important. Okay, yeah. Next, कौन आएगा? कश्यप जी, हाँ आप बोलिए. I am a human being. I am male. I am soul, but it is not my experience and understanding. I am a soul, that is हम हर रोज सुनते हैं इसलिए लगता है. I am a good teacher. I am a divine person because the divine ourselves is living with me. अहम आत्मा गुणात्म में आत्मा हूँ, त्रिगुणात्मक हूँ, सत्व रज और तम से भरा हुआ हूँ. I am intellectual also. I am body also. I am mind also. My body is a temple where my soul lives. So I should love my body also. Yes. My purpose to become a good human being, to understand self, fulfill the purpose of my life, which is given to me by universe. As for example, family, society, I should love them also. We are interrelated, interconnected and interdependent with each other. पूरी दुनिया के साथ हम जुड़े हुए हैं, हम अकेले नहीं रह सकते. इसीलिए तो एक जगह पे कोरोना हुआ, सभी जगह पे हो गया. So we are interrelated. So घर में बैठकर नहीं चलेगा. We should move from our home with जो knowledge पाना है, to gain the knowledge
अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज और दूसरे को देना भी है, टू मूव फ्रॉम द होम एंड गिव इट टू एवरीबडी, टू होल वर्ल्ड. So the whole world should be a non-vegetarian and Mediterranean. To feel happy, I should love my body. Thank you very much. Good. बहुत अच्छा रहा Very सर. good. Nice. Next, Geeta ji. Yes, ma'am. Who am I, मैं? I'm the most lovable soul of the universe. बस मेरे लिए वही पूरा ब्रह्मांड है. Awesome. Okay. और what is my purpose? So to learn lessons, to spread meditation, to complete my task for what I am here, to give my best in everything. Okay. Okay. Good. So To what? you. Yeah, what everybody is writing is true for them. Is what is, no, what is coming from their heart. और एक मुझे वर्ड सेंटेंस नहीं बनाने आया कि जो मैं नॉलेज ले रही हूँ उसको विजडम की तरह स्प्रेड करूँ. पहले मुझे खुद में वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, बाद में मैं उसको स्प्रेड कर सकती हूँ. वो भी मेरा विचार है. Okay, great. Okay, so Akshay, next. I am a child of a God and my parents. I have been working professional and spiritual person. I am an independent person. This independence has made me somewhat egoistic person in my life. I am a strict follower of Jainism philosophy. Used to follow in my lifestyle accordingly. I am very passionate about social work like helping poor through food and education, etc. What is my purpose? At the age of 15, my purpose was to study hard and complete the education. Which line you want to pursue? At the age of 20, my purpose have been changed from good student to become a good professional by the age of 25. I want to make every living being to be happy and live happy, even the smallest to biggest living being. The purpose of life is to live a life without affecting the nature and saving the life of a person with nature. I want everyone should be happy and having peace of mind in their life. For this, whatever possible from my side, I want to do that thing. I want everyone should have been good educated to accordingly and culturally. Yeah, Okay. And purpose? Yeah, I have mentioned that purpose. Okay, fine. मतलब डिफरेंट एज में उन्होंने डिफरेंट बताया है ना मैम. यंग एज में क्या थे, बाद में क्या थे, देन नाउ व्हाट ही इज डूइंग, वो बताया है. Yeah. So basically, I want to live my life without affecting the nature and without affecting the other living beings, from smallest to biggest living beings. So this is the ultimate purpose, and I should think everyone should be educated. Absolute non-violence, no, on all levels. Okay. Yeah, and I am a strict follower of Jainism philosophy. Oh, yeah, that's nice. No, you guys are living it, the non-violence. Yeah, we are still getting there. Yeah, very nice. Jagdish ji? मेरे तो एक है वो एम आई के लिए. मैं जो पूर्णात्मा से आया हुआ एक आत्मा हूँ, और मैंने बहुत सारे वर्ष लिए हैं, तो उसमें सारे लेसन लेके वापस पूर्णात्मा से मिलना है. ये मेरा वो एम आई. और व्हाट इज माय पर्पस में है कि मेरा पर्पस है कि मेरे को बहुत सारे सोल को लेसन देना है, और उन सोल से सारे लेसन लेके वापस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए पूर्णात्मा से मिल जाना है. Very good. Very clear and crisp. Yeah. और अश्वानी जी?
Yes, in Who Am I में मैंने मेरा mention है. I really don't know yet who am I, because I'm searching myself, because it's a process to search ourselves first. And I think from years experience only that I am behaving this way or that. Okay. Further, I can say that the only on the experience that time has passed in my life in this body, is I can say I like this or dislike that, or I want this or that. But because due to the change of time and experience, things changes. So yet we have to discover myself that yes, I can say this is the surety that this thing I have to do or not to do, because as the experience is changing, the things is the vision to see the view to see those things is changing. So the way we are the today, what I am, I feel, I yet I have to discover myself at the at the level of the soul or in the world level or whatever is the way. So first, I have to discover myself. I am not this. I will say that अभी मैं satisfy नहीं हूँ कि मैंने अपने आप को पता लगा लिया कि मैं कौन हूँ, क्योंकि हम ये it's a total lengthy process. We can't say in one day. What I feel is we can't say that yes, I have discovered myself or who am I. I know. We can divide in two parts like soul, purpose. This is we soul. What we are listening only if we are saying something. I don't think I feel this way. This is the first thing. Yeah. What is my Your purpose? experience, right? Yeah. Yes, experience. So I feel in experience only. So what is my Exactly. purpose? Yeah. What my purpose? Yes, in my purpose in the childhood when I was very small in 5 years age or something. Yes, at that time used to think, because I've heard a lot of about the sages and all. I want to become a sage. So that or after that, as the time changes, we studied the things change. Then I thought I have to do something for my country, like to go to in army and all. So but that had not happened. Then I changed to, but two things have now fixed in my mind: country and God. I'm at Okay. that. Yeah. So this is these two things is fixed. How to go about the God and how to do the things, yet that we are doing it daily, yet the right path I am finding for myself. And that's why I want knowledge. So this is my purpose is right now to take as much as possible the experience and knowledge, and to utilize on every daily basis and daily moment. This what I feel Okay. myself. Great. Great. So, yeah, for everybody, the answers are varying so much, you see, because that is the experience. It's true. It is their truth right now. Okay, in this present moment. दीप्ति जी, आप जगदीश जी बोल सकते हैं आपके लिए, आपने जो लिखा है, या आप टाइप कर दीजिए. वो एम आई के लिए लिखा है दीप्ति ने. हाँ. I am that for whom I am searching for a long time. I am that. फिर I से am. फिर से I फिर से am बोलिए. that. I am that for whom I am searching for a long time. I am that light, love, knowledge, consciousness. Sometimes I feel like I am everywhere and in everything. Sometimes I am nothing, not yet clear. Who am I? Want to know truth and come out from illusion and life fully with my true nature. I think in this my purpose also included and want to share with all how to live like this and recognize ourselves and do something for not only making but for whole universe. Each and every being. I want every must live happily and with full-heartedly, with full of joy and grow every moment. And I want to work for that essence.
Okay. I use my body and mind and intellect for betterment of myself and my surroundings. There is so many to write, not only this. What is my purpose? Every being should live always in blissful state. First, I want to live fully with full satisfaction. इतना है purpose के लिए. Okay. Great. Wonderful. Okay. So just for 2 minutes, let's close our eyes. Okay. And before we were born, just imagine, where were we? Before we are born in this current incarnation, just try to remember. Who was I when I did not take this body? Okay. Now, when you're satisfied, you can open your eyes. Anybody got any answer or vision or something? मैं फीलिंग बता सकता हूँ, विजन तो नहीं ऐसा कुछ खास, लेकिन जो हमेशा चलता रहा वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इस बारे में बहुत बार सोचता हूँ अपने जो इस लाइफ को देखते हुए. ओनली आई कैन से टू दैट कि कहीं ना कहीं जो फीलिंग्स के बेसिस हैं उनके हिसाब से मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि मैं कहीं किसी जैसे एक ऐसे परिवार में रहा हूँगा या ऐसे ग्रुप संगति में रहा हूँगा जहाँ पर कि हमारे कल्चर, देश और डिसिप्लिन इनके ऊपर ज़्यादा फोकस रहा होगा. और स्पेशली कहीं ना कहीं किसी और ऐसे सेंट के साथ जरूर रहा हूँ. ये तो पूरी फीलिंग है, 100% फीलिंग है मेरे को, कभी इससे बचपन से लेकर आज तक, कि क्योंकि मैं सेंट्स के साथ जरूर रहूंगा, क्योंकि मन में एक भक्ति का भाव जो है बचपन से ही है. और टोटल मन करता है मैं एक एक्सपीरियंस शेयर कर लेता हूँ आप सबके साथ. आई डोंट नो हाउ टू टेक इट. एक जगन्नाथ मंदिर में गया था और वहाँ पे उड़ीसा में काम से मैं गया था. तो वो जगह मेरे को वहाँ पे जब मेरा मन था जगन्नाथ मंदिर जाऊँ, तो जब मैं जगन्नाथ मंदिर जाने के लिए सोचा तो मैं वाला जाऊंगा कैसे, क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ जगह के बारे में. उड़िया लैंग्वेज है, ज़्यादा उड़िया लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता था. दो बंगाली से थोड़ी मिलती जुलती है, बंगाली अंडरस्टैंड करता था बट उसको इतना नहीं जानता था. आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, मैं एक लोकल ट्रेन में बैठा, क्योंकि मैं ढिंग कैनाल से जा रहा था. तो वहाँ से लोकल मतलब एक एरिया है उड़ीसा का, वहाँ से तो वहाँ से मैंने ट्रेन पकड़ी और मैं वहाँ जा रहा था. अपने आप ही जब लास्ट स्टॉप आया पुरी का, तो एक व्यक्ति, तो पूरी ट्रेन खाली हो गई, एक अचानक व्यक्ति आता है और मेरे को बोलता है कि आप बाबा जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं. डाउट किया कि मैंने बोला, बट फिर मेरे को लगा मैं कोई बात नहीं, जो भगवान की इच्छा, मैंने हाँ जी जा रहा हूँ.
और वो हिंदी में बोल रहा था, बहुत अच्छी हिंदी में बोल रहा था। और जबकि वो लोकल उड़ीसा का वो जिनका जो फेस था, जो गेस्चर थे, जो कपड़े थे, सब वो ऐसा था जैसे उड़िया लोग होते लोकल हैं, है, हाँ। बिल्कुल लोकल। और उसकी हिंदी एकदम शुद्ध हिंदी। तो मैंने बोला जी बिल्कुल। तो बोलते हैं कि आइए मैं आपको लेके चलता हूँ, आपको आज मैं अपने जगन्नाथ जी को दर्शन कराता हूँ कैसे हैं हमारे जगन्नाथ जी। दिस सेंटेंस ही स्ट्रेट अवे सेड टू मी। मैं फिर उनके साथ मैं गया और मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था, मुझे जगन्नाथ जी की ऐसी ऐसी जगह उन्होंने दिखाई और ऐसे ऐसे अंदर लोगों से मिलवाया। आई वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। ये मेरे को उन्होंने प्रसाद भी अंदर से लेके खिलाया, सब कुछ किया। मतलब ही ट्रीटेड मी जैसे उनका कोई गेस्ट आया हो बहुत दूर से, या जैसे कोई दोस्त आ जाता है, ही ट्रीटेड मी लाइक दैट। और मैं खुद शॉक था कि मैं कभी जगन्नाथ जी का, उससे पहले बस मन में था कि जगन्नाथ जी जाना है, लेकिन कभी उनके लिए मैंने उस तरीके से, जैसे होती है ना कि मेरे को हमारे को किसी के साथ अटैच श्रद्धा, हाँ, उनके लिए उस तरीके से श्रद्धा नहीं थी, क्योंकि मैं बचपन से जो है ये अपना भगवान को तो मानता था और सब करता था, लेकिन पर्टिकुलरली जगन्नाथ जी के रूप में श्रद्धा नहीं थी उतनी ये। और उसमें वहां पर जो मेरे को सारा एक्सपीरियंस हुआ, और वहां पर मेरे को वो दिन मेरे आज तक कभी भूल नहीं सकता हूँ। वहां पे मुझे रियलाइज हुआ कि दैट मैं उस दिन पहली बार मैंने महसूस किया कि मैं एक सोल हूँ जेन्युइनली। और उससे पहले बहुत होते थे, लेकिन उस दिन बहुत अच्छा फीलिंग हुई थी। और जब जगन्नाथ जी की जो जगन्नाथ जी जहाँ बैठे हुए हैं, खड़े हुए वहां पर हैं, उनके सामने जब मैं जाके एकदम स्टैंड हुआ और उनके सामने मैं उनको देख रहा था, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मैं कहीं पता नहीं कहाँ चला गया हूँ। आई डोंट नो अबाउट इट। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे, जो पुजारी होता है वहां पे, उसने बोला कि बहुत देर हो गई, अब आप जाइए। मैं फिर बाहर आ गया और वहां पे उन्होंने मुझे एक जगह दिखाई जहां पर जो ये अपने जगन्नाथ जी के परम भक्त चैतन्य महाप्रभु जी ने 3 उंगलियां रखकर जगन्नाथ जी के दर्शन झांक कर किए थे, पिलर से साइड में होके। वहां पे एक पिलर है पीछे, बिल्कुल पीछे जगन्नाथ जी के उसके मंदिर के अंदर एक पीछे पिलर है लास्ट में। तो बोलते हैं बहुत भीड़ हो गई थी, तो चैतन्य महाप्रभु बोले कोई नहीं, सबको दर्शन करने दीजिए। तो उनको जगन्नाथ जी को देखना था, तो उन्होंने 3 उंगलियां जब रखे और साइड में, पिलर से साइड में होके झांकने की कोशिश करी जगन्नाथ जी को देखने के लिए, तो उनकी वहां पर कहते हैं कि वो निशान पड़ गए। और वो निशान है, आपको पता चलेगा कि फिंगर के निशान हैं वो आज भी। ओके। तो मैंने उनको जब टच किया, जब मैंने उन फिंगर्स की जगह को टच किया और मैंने फील करने की कोशिश करी कि चैतन्य महाप्रभु रहे होंगे, क्योंकि मैंने उनके बारे में बहुत सुना हुआ है और बहुत उनके बारे में काफी कुछ पढ़ा है। तो मैंने जैसे ही वो टच करके फील किया, मैं बता नहीं सकता, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उस स्टेट ऑफ भक्ति में चला गया। और तब मैंने रियलाइज किया कि जो गोलोक के बारे में श्री कृष्ण का चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया है, वो कैसा होगा और क्या होगा। तब मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरा जो मार्ग है वो भक्ति का मार्ग है, और हमको लेकिन भक्ति के साथ साथ और चीजें भी सीखनी होंगी। और लेकिन वो ऐसे कहाँ जाऊंगा कुछ नहीं पता था। और दो आई वाज वेरी डिवोटी हूँ साईं बाबा जी की कृपा है, मैं उन्हीं को बिल्कुल सब कुछ मान के चलता हूँ। तो ये मैं एक्सपीरियंस इसलिए आपको बताया, जो चैतन्य महाप्रभु का मैं बता रहा था कि उनकी जो भक्ति का जो था, वो जो फीलिंग आई थी, वहां मुझे उस दिन रियलाइज हुआ था कि मैं जरूर किसी सोल के साथ अटैच हूँ, लेकिन वो कौन है, कहाँ है, कैसे है, मुझे वो चीज मैं मतलब आज भी रियलाइज करता हूँ कि मैं जरूर, क्योंकि जो भी लोग मुझे मिल रहे हैं, सेंट्स मिल रहे हैं, सब जगह मिल रहे हैं, बहुत बचपन से साधुओं के साथ मिलता रहा, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ उस बेसिस पे कि मेरी जो फीलिंग है वो इससे अलग कभी गई नहीं है। तो मैं जरूर कभी इसी ऐसी संगति में रहा हूँगा, ये डेफिनेट है, ये श्योर है। और ये मेरी फीलिंग्स भी आती हैं, कभी ड्रीम्स आए हैं तो ऐसे ही ड्रीम्स आए हैं मेरे को जनरली, कि मैं कभी किसी आश्रम में हूँ, कहीं हूँ और किसी जगह पर हूँ, पूजा कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, लाइक दिस ओनली। बट अब इससे ऊपर जाना है, वो कैसे होगा, क्या होगा, वो सब प्रभु के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं। ओनली वी कैन डू ट्राई आवर बेस्ट। तो ये मेरी फीलिंग है। वेरी नाइस एक्सपीरियंस। सो आपको अपनी जो आपको वो you're remembering कि अबाउट योर पास्ट इनकारनेशन, या फिर आपके जो भक्ति में आप जो रहे हैं,
वो आपको याद आ रहा हाँ जी, है, और फिर वो हाँ भक्ति, हाँ फिर आपको भक्ति मतलब हमारे थ्रोट चक्रा तक आता है भक्ति, जी फिर जी उसके ऊपर फिर थर्ड आई आएगा, और उसके ऊपर फिर क्राउन आएगा। सो आपने वो भक्ति वाला जो मार्ग है पूरी तरह से शायद वो फेस पार कर चुके हैं, इसीलिए अभी आप ध्यान मार्ग में आए हैं। सो ये नहीं मैं आप सही कह रहे होगे, मुझे नहीं पता, बट मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंसेस इतने हैं साईं बाबा के साथ और भगवान के साथ कि मैं डेली बेसिस पे आपको बता सकता हूँ, डेली बेसिस पे। या इट सो वाज आप, बट इट यू वाज आर सो वेरी लविंग। कनेक्टेड, वेरी कनेक्टेड। जो आपके गाइड्स हैं और जो आपका हायर सेल्फ है, वो आपको बहुत अच्छे से आप कनेक्टेड है उसके साथ, ये मैं बोल सकती हूँ। इसके इसके कारण आपको एक्सपीरियंसेस आते हैं, और वो आपको कुछ दे आर ओनली ड्राइविंग यू, आपकी जर्नी में वो आपको ड्राइव कर रहे हैं। दे आर जी जी कीपिंग यू जी कांस्टेंट ऑन द जर्नी, सो दैट दे टेक यू वेयर आपको जाना है, जहाँ जहाँ पहुंचना है इस इनकारनेशन में, वहां ले जाने के लिए वो आपको हेल्प कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं with their loving presence, with their loving experiences, मोटिवेट कर रहे हैं आपको, है ना। दैट इज द ड्राइविंग इसीलिए फोर्स, नो, शायद। दैट इज द फ्यूल, राइट। वो फ्यूल है जो यस आपको चला रहा है इस ओके मार्ग पे, ओके ओके। है ना। आप लोगों को शायद इसीलिए लॉकडाउन में आप सबसे मुलाकात हुई। लॉकडाउन से मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, अब मैं सब और से माफी चाहूंगा, लेकिन थोड़ा मन कर रहा है इसलिए बता रहा हूँ। आज मैं फर्स्ट टाइम आई एम ओपनिंग इन द ग्रुप्स, नहीं तो मैं कभी ग्रुप्स में ओपन नहीं हुआ आज तक। थोड़ा सा इसलिए कि शायद भगवान का भाव आ रहा है। या जो क्या हुआ, मैं शिरडी गया था इस 15th ऑफ मार्च को, क्योंकि मेरी वाइफ का बर्थडे होता है 15th मार्च को। तो मैंने उसको मेरे को लगा कि वो 15th ऑफ मार्च को यानी कि बर्थडे के दिन, तो मैंने पूछा चलो इस बार लेके चलते हैं। तो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया एंड हम लोग चले गए। सबने कहा कोरोना है, मैंने बोला बाबा के पास कोई कोरोना नहीं है, आप चलो। तो हम लोग सब गए वहाँ, मैं गया, हम लोग गए। और जब 17th को वी वर रिटर्निंग बैक टू होम, तो उस दिन वो खैर बाबा ने मतलब बंद हो गया मंदिर। दोपहर में हमारी हमने अटेंड करके उसी भी वो ये जो 15 16 17 3 दिन में वहां रहा। मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि वर्ल्ड की बहुत चीजें हो चुकी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं आपसे बहुत दूर जा रहा हूँ। और मैं आजकल जो आपका नाम लेता हूँ या जो मैं भगवान का नाम लेता हूँ ईश्वर का, वो सिर्फ फिजिकल हो गया है, मन से नहीं आ रहा है। तो डू समथिंग फॉर दिस। मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ करो। क्योंकि मैं इस चीज से बड़ा अंदर ही अंदर परेशान हो रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बेकार हो रहा हूँ। ओके। तो मैं ये प्रे करके आया था। और आप क्या बताऊं, आने के बाद मैं वापस आया तो ये लॉकडाउन सब स्टार्ट हो गया। और उसके बाद जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो मैं एक नवरात्रे थे हमारे, तो मैंने माता मैं हम व्रत वगैरह रखते हैं, पूजा पूरा 9 दिन करता हूँ, मैं 9 days फास्टिंग में रहता हूँ। तो उस दौरान मुझे लगा कि आई डू समथिंग माई ओन, क्योंकि उस समय तक मैं पत्री जी और आपके किसी भी ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ था। तो हालांकि धीरेन वगैरह ने मुझे अब नवंबर में बोला था कि भैया आप आ जाओ इसको देखो। तो बट मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। तो मैं अच्छा। इसको करता हाँ। और मैंने 40 डेज एक अपना 40 डेज का एक अपना टारगेट रखा। जिस दिन वो कंप्लीट हुआ है उसी दिन रात को धीरेन का मुझे कॉल आता है, और कुछ पर्पस से बात करने के लिए, और हम उससे बात करते हैं। तो वो कहता है भैया मैंने अभी मुझे मेडिटेशन में जाना ही है। तो मैं ऐसे ही उसको बोला, मैंने बोला मेडिटेशन में जाना है, ऐसा क्या मेडिटेशन करते हो, कैसे करते हो, जस्ट सिंपली। तो बोला कि आपको मैं इतने दिन से बोल रहा हूँ, आप सुनते तो हो नहीं। आप एक बार आओ तो सही, आज 9:30 है, आप अभी आधा घंटे में खाना वाना खा लो और आ जाओ। मैंने खाना तो मैं खाता नहीं हूँ, ठीक है मैं ज्वाइन करता हूँ। तो 9:30 वो 9th ऑफ मे का मुझे दिन याद है आज तक। वो 9th ऑफ मे को आई विल नेवर फॉरगेट। मैं उस दिन उसके साथ वो मेडिटेशन में बैठा, जो कि मैं मेडिटेशन पहले करता था, लेकिन ये जो मेडिटेशन मैंने आप लोगों से जो सीखा है सब, उसमें शायद एक मैं कहता हूँ कि जैसे होता है ना कि नंबर 1 से उठा के सीधा नंबर 50 पे रख दिया हो मेरे को। तो मेरे साथ यही हुआ कि उस दिन मेरे को नंबर 1 से, यानी कि या 0 से आप कह लीजिए, 0 से सीधा उठा के मेरे को 10 पे या 20 पे, वॉट एवर द फिगर आई स्कोर, मतलब वहां पर जाके बैठा दिया। वो दैट डे मैन आई वाज सरप्राइज्ड। और उसके बाद फिर मैं वो डेली उनके दोपहर का सेशन होता था उसके उनके वो अटेंड करने लगा, क्योंकि घर में और कोई कुछ तो था नहीं, और बाकी बुक्स पढ़ना, स्वाध्याय करना, सब अपना ये चल ही रहा था।
और पत्री जी से भी बात हो गई जूम के सेशन में। उन्होंने फिर मेरे को बातचीत हुई उनसे 2 या 3 बार बात हुई है उनसे मेरी। तो उन्होंने पूछा आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या एक्सपीरियंस हो रहा है। मैंने उनको खैर बता दिया कि ये मेरा एक्सपीरियंस है। मेरे को ध्यान के जो सबसे अच्छे एक्सपीरियंस हैं वो 40th डे, 41st डे, 22nd ऑफ जुलाई, यानी ऐसे मतलब आई जस्ट रिमेम्बर्ड ऑल दोज डेज, मतलब इट वाज एक्सीलेंट डे। और आज भी एक बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस हुआ अर्ली इन द मॉर्निंग। आई एम रियली टेलिंग यू, वंडरफुल। मतलब एंड दिस थिंग हैज चेंज्ड माय लाइफ। मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद बाबा ने मेरे को पुश कर दिया, वहां से उठा के यहाँ डाल दिया, और नाउ आई एम टोटल यस ट्रू। विद दिस कि लॉकडाउन में लोगों को सोच रहे थे कैसे टाइम काटते, और मैं ये सोचता था कि काश ये 24 आवर्स बढ़ जाए। सीरियसली, मतलब मैं इतना बिजी हो गया मैं कि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता था। आई डोंट नो हाउ दिस 4-5 months हैज जस्ट स्पेंट, कैसे कट गए पता ही नहीं चला। बहुत कुछ बदल गया। वंडरफुल वंडरफुल। सो आपके लिए हुआ है लॉकडाउन। मैं तो एक्चुअली ये लॉकडाउन के लिए इतनी थैंकफुल हूँ क्योंकि मेरे सोसाइटी में मैं देखती थी बच्चे पेरेंट्स उनको टाइम ही नहीं दे पा रहे, दोनों के दोनों ऑफिस जा रहे हैं और बच्चे घर में मेड्स के साथ हैं। और मतलब मैं कभी कभी गिल्टी फील भी करती थी कि मेरा बच्चा हमेशा मेरे साथ रहता है और बाकी के बच्चे नो दे आर मिसिंग। और ऐसा और जी मतलब कि कपल्स भी मतलब दे आर लाइक सो स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ वर्क एंड ऑल। उनके चेहरे पे वो दिखता था इतना स्ट्रेस, बट ऑल दोस थिंग्स। एंड मैं सोच रही हूँ कि ये लॉकडाउन हुआ तो दोज चिल्ड्रन दे मस्ट बी सो हैप्पी कि पेरेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है। फैमिली जो इतना स्ट्रेस रहते थे वो आराम से मतलब दे आर स्टेइंग टुगेदर। बच्चे सबसे ज्यादा स्पेशली फैमिली टाइम को बहुत डिप्राइव्ड है इस जनरेशन में। एंड आई एम सो हैप्पी कि दे आर गेटिंग दैट। इज लाइक सब लोग वो जो भी ये हुआ है ना, जो लैक है, जो गैप है, वो भर गया है और सब लोग दे आर एक्सपीरियंसिंग द जॉय ऑफ द फैमिली एंड होम फूड, जिसको हम अप्रिशिएट भी नहीं करते थे क्योंकि हम हमेशा देखते थे कि बाहर जाके पानी पूरी खाए, ये खाए, वो खाए। So we are appreciating the beautiful small things of life. This lockdown is a blessing in disguise. यस यस, सबके लिए होगा ये। एक मेरा लॉकडाउन सबके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। जिसने इसका फायदा उठाया वो तो सबसे लकी है। मतलब आप जैसे आपके जैसे लोग जिन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया। I mean, पूरा हमने क्या तो ऊपर आप इसके लिए ना मैं सच बताऊं, पूरे आप सबको, मैं शारिका मैडम को भी एक दिन कह रहा था, मैंने बोला आप विद माय फोल्डेड हैंड्स मैं आप सबको, हर एक व्यक्ति जो भी पार्टिसिपेट, जो जूम के अंदर जहां पर भी ग्रुप में कोई चाहे सीख रहा है, चाहे नया है या पुराना है, मैं सबको सच में बड़े दिल से धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि अगर सब लोग नहीं होते, सिर्फ बोलने वाला और सुनने वाला कोई ना हो तो भी नहीं हो सकती चीज। और अगर सब सुनने वाले हो, सब सुनने वाले होंगे और बोलने वाला कोई नहीं होगा तो नहीं होगा। बट दैट्स व्हाई आई रियली से इस ग्रुप में भी जितने लोग हैं मैं सबको, और हमेशा मैं आई विल रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। और सबसे ज्यादा मैंने एक चीज बहुत ऑब्जर्व करी, जो मैं हमारे हम हैं सेंट, वो हम मुझे बोलते थे फेमिनिन पावर। रियली आई विल टेल यू, पत्री जी के ग्रुप्स के अंदर फेमिनिन पावर या नारी शक्ति, और जो गीता के अंदर प्रकृति के बारे में एक्सप्लेनेशन है, वो मैंने रियली फील किया है आप सब के अंदर। रियली बहुत सारी चीजें मतलब चेंज, परसेप्शन हैज लिटरली चेंज लाइक एनीथिंग। बहुत बिल्कुल चेंज हो गया। मैं कभी सोचता था ऐसा होता होगा, लेकिन उसको देखने को मिला मुझे। आप हो गए, जितने भी मैडम्स हैं, बहुत ईच एंड एवरी, एंड दे आर सो, और सब लोग इतने प्यार से बात करते हैं। इट्स रियली सरप्राइजिंग, क्योंकि मैं बहुत सारे स्पिरिचुअल ग्रुप्स को मैं जा चुका हूँ, देख चुका हूँ, और मैं उनको बहुत क्लोजली रह भी चुका हूँ उनके कई के साथ। बट मैं सच बताऊं कि उसमें इतने बड़े ग्रुप में इस तरीके की फीलिंग्स नहीं है। चाहे वो आर्ट ऑफ लिविंग हो, चाहे वो और ऑर्गेनाइजेशंस हो, स्वामी राम का ऑर्गेनाइजेशन हो जिन्होंने
ही हो। ओके, मैंने अपना ये टाइम मतलब अप हो गया है, मेरा बेटा उठ गया है।